anything that is happening around them, वो ऐसी है कि वो उनको छुपानी है. They cannot talk to anyone, they cannot tell anyone. तो ये जो है ना, ये constant एक battle चल रहा होता है जिसमें men keep on facing these things silently. ना वो किसी से discuss कर सकते हैं, ना वो किसी को बता सकते हैं. So these are some of the things कि जो बड़ी रूटीन में होने वाली चीजें हैं, बट उनके बारे में बात नहीं होती है. और आज की जो हमारी ये ओपन कॉन्वर्सेशन है, इसका बेसिक जो रीजन, द एम फॉर दिस इज वेरी सिंपल, कि हम एक ऑनेस्टी और एक एम्पैथी के साथ एक ओपन डिस्कशन करें, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट वर्किंग मैन आर गोइंग थ्रू, एंड वी काइंड ऑफ एक्सप्लोर हाउ वर्क प्लेसेस, फैमिलीज, कम्युनिटीज, या हम अपने इर्द गिर्द के जितने भी हमारे आर सपोर्टिंग सिस्टम, the men of our culture and our society, उनके लिए कैसे हम बेहतरी चीजों में ला सकते हैं. So that's what we're gonna address, and for this very important conversation to guide us through this, three distinguished experts who bring diverse perspectives from not only psychology, corporate leadership, and healthcare management. They are here with us. I'll just give some brief intros, starting with Brigadier retired Dr. Shoaib Kiani. He is a professor of psychology at NUMS, and he has decades of experience working with emotional health, resilience, trauma, and mental well-being. His clinical and academic work has shaped how mental health is understood and taught in Pakistan. We're truly honored to have him with us today. And our second panelist, who is Mr. Fahim Khalid Qureshi. He is the Vice President and Executive Manager, Talent and Culture at Mobilink Bank. And he brings us a deep understanding of workplace culture, employee well-being, leadership pressures, performance-driven environments, and his insights into how organizations can support mental health. It will be extremely valuable for today's session, and thank you so much for joining. Lastly, and finally, Mr. Abdul Ghaffar Ansari Saab, who is the Chief Operations Officer at Butch International Hospital, Multan. And he also has decades of experience, with years of experience managing teams in high-pressure healthcare environments. He understands the first-hand things about how stress, burnout, emotional exhaustion kind of affects working men, and both not just the general audience, but the staff, the patients. He's had worked with all sorts of categories. So we're grateful to have his operational and human-centered perspective today, and a very, very warm welcome and thank you to all three of my panelists for taking the time out and to be here to discuss and address this very important issue. Coming to a very, very brief introduction of myself, my name is Nawal Ali Shah, as I mentioned before. I am the Corporate Services Manager here at Sehatyab. We are doing this session in collaboration with Pakistan Mental Health Coalition. और सेहतियाब और पाकिस्तान मेंटल हेल्थ कोलिशन दोनों पिछले काफ़ी टाइम से they're working for mental health awareness, not just for men, but for all categories. And we welcome you, we warmly welcome you for this session. And I hope that you guys are going to have a very fruitful discussion here. Or just to keep things aligned, for this session, we will have, it's going to be plus minus 60 minutes ka session, in which we will try to address some already structured questions, or kuch questions aapne in the registration form you guys have provided us, unko hum address karenge. Or once we do that, we will at the end we will go for a Q&A, और उसमें जो आपके जितने भी questions जो आप chat box में डालेंगे, we will address those. So throughout the session, कोई भी question आता है आपके mind में, drop it in the chat box and we will address those questions at the end of the session. And throughout the session, some polls are going to be popping up on your screens. So don't forget to give that feedback to us, and we will definitely be appreciating that. So welcome to all three of my panelists, and we'll start. जी, कैसे हैं आप तीनों? First of all, starting with that. Thank you very much. Thank you, Nawal. Good afternoon to all the participants. And it's an honor for us to be part of this webinar. And we are really grateful. At least I'm grateful. I hope my other partner will also be. So thank you. Yes, I hope everybody is doing fine.
we'll be sharing actually, the men go through the experiences, especially corporate sector. Or luckily, I work in healthcare, which is very complex in any dynamics. So challenges we face, discuss kar rahe honge. We'll be sharing experiences and over the time. So hopefully, inshallah, we'll have a good session. Inshallah. Thank you, Nawal. Thank you, Sehat team, for arranging this session. I'm happy to be here because आजकल mental well-being के बारे में इतना discussion नहीं होती, but you are the one जो इसकी awareness create कर रहे हैं corporate में भी और वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम करें. So it's good कि आप लोग इस conversation को लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम बात करेंगे तो फिर लोग openly discuss करना शुरू करेंगे जो कि एक बहुत बड़ा fear होता है हमारे अंदर. बिल्कुल. I totally agree, Fahim. Thank you to all three of you. Thank you so much. I'll start with a very, very basic question, जो कि सबके mind में आता है. How do you see men's mental health in Pakistan today? And is it openly discussed? Yeah, it's still a neglected area. You guys can start. Shoaib Saab, Dr. Shoaib, you can start. Yeah, okay. Thank you, Noel. It's a very complex and important topic. First, we need to understand that once we talk about the men's mental health, we're talking about the generation which is older than Gen Z, because we have two sort of a generation, जो कि अभी एक Gen Z अभी है और एक इससे पहले. So because the older generation is basically a product of a collectivistic culture, जो एक value system, जो ये which tells us कि your personal desires, your personal values, they're not important, rather than the most important thing is the group values or social norms और ये वही culture है जिसके ऊपर लोग क्या कहेंगे. We do a lot of things because of other people, not because of our own desires or our limitations को भी देखते हुए भी हमने. अब ये वो प्रोडक्ट ये जो हमारी जनरेशन है ये उस कल्चर की प्रोडक्ट. अब इफ यू गो डीप इनटू दिस, तो यही कल्चर जो आप जिससे आपने भी इनिशियली भी बात की, जो कि एक वो मैन अप मेंटालिटी और एक जो मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल जो हमारा सिस्टम था, उसके ऊपर ये एक मैन स्ट्रॉन्ग है, रिजिलियंट है, ये उसी कल्चर से ना एक ज्यादा नहीं थे. ऑल्दो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में भी इस तरह होता है, बट इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है हमारी. एंड देन जो बर्डन ऑफ जो ब्रेड विनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की आपने बात की, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन के जो वो करना है. ठीक, फिर जो आपने इश्यूज जी, एंड देन इश्यूज को जो ये एक शेम वाली बात है कि जी it doesn't share because people will mock me, people may think that I'm a weak person, I'm not handling my stress, I'm not handling my issues. ये जो stigma से बचने के लिए ना वो. And in our culture, another important thing, mental health, कि we go for the maladaptive sort of a coping. For example, we go to those who are not expert in this field. We go to religious sort of जो हमारे पीर काम है इस किस्म की बहुत सारी चीजों के पास चले जाते हैं. And then there is a lot of displacement in this. उसको displacement इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो mental health में जो हमारे men की mental health में जो stress, anxiety और ये चीजें जो आती हैं, तो वो इनकी जो manifestation is in a different form होती है. For example, कि अपनी जो उसकी मिसाइल है वो आके अपने घर में निकालेगा, डिस्प्लेस करेगा बच्चों फैमिलियों के ऊपर, एंड एंगर, इरिटेशन, एंड इसको दे कंसीडर इट अ नॉर्मल बिहेवियर एंड ही रैशनलाइजेस कि जी खाना तैयार नहीं है. हम इसको डेफिनेटली आगे जाकर भी एड्रेस करेंगे. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अराउंड दिस एज वेल, बट अभी अराउंड द एरिया फहीम साहब एंड अब्दुल गफ्फार साहब को I'll give the floor. और उसमें I'll add up this follow up question कि अगर तो ये openly discussed नहीं है और ये neglected है, तो why do you think कि men's mental health remains such a neglected issue in the society? I 100% agree with Dr. Saab. Mental health is the most neglected area and under discussed area. और ये है कि हमारी कल्चर के अंदर ये है कि we have a strong expectation from men कि आपने ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, एंड यू आर द वन कि जिसने कोई भी शो नहीं करना. मर्द रोते नहीं है, या हम अक्सर कहते हैं
हैंडल इट योरसेल्फ। बिल्कुल ये चीजें जो है ना, इसकी वजह से एक वो बचपन से ही एक माइंड के अंदर एक ना इंसान के अंदर क्रिएट करते हैं कि यार कोई भी परेशानी तो उन्हें बताना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सफर कर रहे होते हैं, बहुत सारी मुश्किल चीजों से गुजर रहे होते हैं, बट ओपनली वो डिस्कस नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि लोग फील ना करें कि ये बंदा स्ट्रांग नहीं है और इसके चीजें इसके कंट्रोल में नहीं। सो ये एक किस्म का ये हमारे कल्चर में है। एंड आई एम हैप्पी बिल्कुल कि इसके बारे में बात करना शुरू हो गए हैं लोग। अब चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, फॉरम्स आ गई हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। सो आई थिंक इट विल गेट बेटर विद टाइम, बट होपफुली इसको बहुत टाइम लगेगा बिकॉज ये बचपन से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो वी नीड टू फिक्स द बेसिक्स। बेसिक्स हम फिक्स करेंगे तो फिर हम आगे चीजें लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आई टोटली एग्री जी अब्दुल गफ्फार साहब Rightly said by the both gentlemen, and add on, we are carrying that tag since we were born. बिल्कुल Boys are not supposed to cry. Cry is an emotion. Emotion होता है जब you are going through the pain. But that we need to understand. Culturally, इसको ignore. I think so. Is Southeast Asia का ज़्यादातर problem है. यहाँ पे this is how normally we are brought up किया गया है हमारा. जो हम इस वक्त बैठे हैं, we will be talking more about corporate side पे. So we carrying that बिल्कुल take on the workplace as well. अच्छी चीज़ ये है कि ये सेहतयाब या even कुछ corporate sectors हैं, they are working on mental health from the leadership side till the whoever is working in their corporate sector. मेरे ख्याल में जो leadership का role होता है ना, जैसे role model. So मुझे ये लगता है कि जो हमारा कल्चर है, corporate culture है, वो ऐसा बनता जा रहा है जो हम glorify करते हैं जिन चीज़ों को, लॉन्ग आवर्स को ग्लोरीफाई करते हैं. लॉन्ग आवर्स क्रिएट स्ट्रेस एंड बर्नआउट. हम इसको अभी भी ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं. तो दैट नीड्स टू बी एड्रेस के वर्क लाइफ बैलेंस is the only way you can manage your the mental health. उसके अलावा आई सी के एक स्किल से देखा जाता है मैनेजर्स में और लीडरशिप में. सो ये कंप्लीटली इग्नोर है कि उनको ये स्किल से या दिया नहीं जाता है या उसको ट्रेनिंग नहीं हो रही होती है. they don't know how to manage mental health, इवन अपनी या किसी टीम मेंबर्स की. तो इसका जो इम्पैक्ट आता है इज जिससे बर्नआउट, स्ट्रेस एंड द इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कंपनी या कम्युनिटी पे आ रहा होता है. तो इसको हमने देखना पड़ेगा. बिल्कुल आई टोटली एग्री. और exactly this is the reason के वो overwork is glorified and is considered a norm for performance, जबकि it's not but it's the other way around. So now moving to the main section and the main questions. My first question is going to be from Dr. Shoaib Kiani. So from your experience, what are some of the early signs that men may be struggling emotionally but they're not seeking help, and how do ideas about being a man, जो एक stereotype बनी हुई है, affect whether the person seeks support or not? Yeah, exactly. A very critical question. Okay, in our experience, बड़े peculiar symptom जो है ना वो आते हैं, behavioral भी आते हैं, cognitive भी आते हैं और physical भी आते हैं. For example, a normal individual, if he starts showing increased irritability, anger, right, और कोई withdrawal के symptom है, isolation है, relationship with the friends, with family, जहाँ पे भी वो इम्पेयर होना उसकी ग्रोथ शुरू होती है, वहाँ पे हमें एक escapist behavior नजर आता है. तो हम उसको फौरन इमीडिएटली ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं. स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, राइट जी, पेन्स है बॉडी के अंदर, बहुत सारे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं, एपिटाइट खाने पीने के मामलात में, एंड देन कहीं पे भी अपनी एक नॉर्मल जो बिहेवियर है उसमें कहीं भी हमें जो पेक्युलियर किस्म की बहुत प्रोमिनेंट किस्म की चेंजेस नजर आती हैं. तो दिस इज अ साइंस के ये दिस नीड टू बी एड्रेस्ड, अदरवाइज जो है ना ये एक इट विल लीड टू द मेंटल हेल्थ इश्यू. आई होप somebody is listening to me. There is
जी बिल्कुल, we जी are जी listening. जी I wasn't तो interrupting. जी ओके। तो ये अर्ली साइंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे एक्सपीरियंस में आई हमेशा से, जब हम भी किसी को बैकग्राउंड में जाते हैं तो वी फाउंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि बिहेवियरल भी है, कॉग्निटिव भी है, फिजिकल भी है, एंड दे नीड टू बी टेस्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज to avoid this mental sort of issues. Thank you so much, sir. Thank you for addressing the question. My second question is going to be related to this, बल्कि आपने पहले भी इसके बारे में बात की कि faith based चीजों को लेकर। तो what do you think, what role does the society या faith based beliefs play करते हैं in facilitating or preventing access to mental health care among men? जी, I have to answer this. Yeah, जी, Dr. Kani. बिल्कुल। I was ओके। देखिए, इन आवर कल्चर, जैसे मैंने पहले बात की, फेथ है, राइट, और बिलीफ सिस्टम है, दे और आर जो फैमिली सिस्टम है, इसके पॉजिटिव्स भी है, एंड दे सपोर्ट टू मच टू द इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट्स, इवन साइकोलॉजिकली भी, और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए भी। तो ये उसके अंदर वो अपनी एक सूदनेस फील करते हैं, उसके अंदर अपनी जो है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, डिस्कस करता है। बट वंस इसकी जो मिसकंसेप्शंस है, ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है रिलीजन इसकी, जब उसकी तरफ जाते हैं तो फिर इसके अंदर ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो। फेथ और ये सारी चीजें ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर सपोर्टिव इन ऑल, बट वंस वो जब किसी अपने लाइक आप देखें तो जादू, कहेंगे कि मुझे जादू हो गया, काला जादू हो गया, ब्लैक मैजिक है, ये इवल आई, नजर लग गई मुझे, और इस किस्म की जब चीजों में जब पढ़ते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ इशू और ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, एंड देन दे गो टू द दोज हीलर जो कि उनको और ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, और ज्यादा उनको एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, और इंस्टेड के जो इनिशियल स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई हो जाए और ट्रीटमेंट ले लें, बट दे गो टू सच टाइप्स ऑफ बंदों के पास। तो वो जो फेथ है वो इंस्टेड ऑफ मतलब एक उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, वो उसको एक ना टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी की तरफ भी ले जाता है और नेगेटिविटी की तरफ भी ले जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉल्यूशन फोकस्ड, वो ऐसी चीजों पे फोकस हो रहे होते हैं जो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है, और बल्कि उनकी जो एक सिचुएशन है उसको मजीद इंक्रीज ही कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कियानी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी फ्रॉम फहीम एंड अंसारी साहब। What are the psychosocial implications of the वो कह लो stereotypical terminology एक यूज होते हैं ना, the provider? तो ये जो रोल है इसका क्या psychosocial implications you guys experience in regard to men's mental well-being? Right. So the provider role puts men under consistent pressure, silent pressure, and their pressure shapes their emotional and psychological health in very real way. तो इशू ये होता है कि हमें कंसिस्टेंटली सुनने को मिल रहा होता है कि जो भी आदमी, जो भी मर्द होता है घर के अंदर, कि उसी ने अर्न करना है, उसने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो एक कंसिस्टेंट एक प्रेशर रहता है, दैट इज नॉर्मल। और ये सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है, ये बाकी कल्चर में भी ऐसे ही है, बट हमारे में ज़्यादा है। और दूसरा एक ये होता है कि फेयर ऑफ फेलियर फिर रहता है उसके साथ, कि इन केस कहीं जॉब ना चली जाए, अगर जॉब चली गई तो हाउ आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। देन उसके साथ ही हमने और भी हमारे जो कल्चर के अंदर चीज़ें हैं कि आपने शो नहीं करना, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, तो वो एक जो बर्डन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर ये सिर्फ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, इट ऑल्सो अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो उसमें फिर ये होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें जो हैं उसी के साथ ही लिंक्ड होती हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग कि जो बहुत ही एक मुश्किल सी चीज़ है प्रोवाइडर होना। एक आप वैसे तो अच्छा लगता है सुनते हुए, बट उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सही सही सही। अंसारी साहब। I totally agree with both gentlemen. Provider is not the financial provider. When we come to corporate sector, we provide services. So we are being expect
to do like something extraordinary. So उसका एक norm होता है कि extra mile हमें दौड़ने के लिए we have to put in lot of efforts. और जो human life है ना is revolve around one thing कि एक balanced life होनी चाहिए. Extra mile के लिए I have to run and provide the service to either my customer or whoever I'm serving to. So that create stress. मसला stress का नहीं है, मसला stress की management का है. So we need to understand how we manage our stress, being a financial provider or service provider. जब तक इसकी एजुकेशन नहीं होगी फ्रॉम द वेरी बेसिक, तो हम शायद इसको कोप करने में बहुत चैलेंजेस आ रही होंगी. तो आई थिंक सो इट्स अ पब्लिक इशू, पब्लिक हेल्थ इशू है. इट्स नॉट माय इशू और योर इशू. So ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट प्रोबब्ली क्रिएटिंग अवेयरनेस. मेरे ख्याल में आजकल हो भी रही है कुछ कॉर्नर्स में. वी सी इन अर्बन एरियाज में काफी काम भी हो रहा है. वी सी दी रिजल्ट्स एज वेल. सो जितनी अवेयरनेस होगी उतना बेहतर हम मैनेज कर पा रहे होंगे इस एज अ प्रोवाइडर का रोल भी. बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री. Now, to all three of you, this question is going to be, and I would like to know कि अपने experience से, if you guys can give me one example each, जहाँ पर societal expectations or job stress kind of affected an employee or client or in general a man's ability to seek help or express vulnerability. Can I start with this? I mean, yeah, you can start. I have been working in healthcare, तो इस वजह से I know one real life scenario. There was a very good surgeon in UK, top performer, and all of a sudden life changes आ जाती हैं. There was some difficulty he has to go through. I'm not talking about the Pakistan. I'm talking about a very developed country with NHS. They have a mental health, circles as well. They manage, they screen and blah blah. He went through the divorce, Okay. So being a top performer, managing his personal life, affecting his work as well and personal life. So what should happen? In days of difficulties, organizations they should prepare some sort of a comfort zone for something as he should go through this difficult life, and so uski life better honi chahiye. Is difficulties mein corporate sector generally they have a lot of policies but they ignore. So what happened? Ended up in a long time depression. He went to panics and blah blah blah. He lost his post as well, General Medical Council membership as well. So ये उस डेवलप कंट्री की बात बता रहा हूँ. यहाँ पे इस तरह के कई केसेस होते हैं जो आई नो पर्सनली. सर्जन ने सर्जरी की, इन्फेक्शन से किसी की डेथ हो गई. ही वाज किल्ड ऑन द स्पॉट इन द क्लिनिक. सो अब सर्जन के लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सर्जन ने हजारों लाइफ बचाई हैं. एक लाइफ किसी वजह से देयर इज मेडिकल इशू या उसको कोई डिफरेंट क्लिनिकल इश्यूज हो सकते हैं उसके साथ. मे बी डायबिटिक है, उसकी क्लिनिकल इंडिकेटर्स आर वेरी बैड और इस वजह से उसकी डेथ. पर कम्युनिटी क्रिएट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सर्जन. वो डरते हैं, इस प्रति कम्युनिटी में वो डर रहे होते हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, इस स्ट्रेस में काम करना इज नॉट अ इजी टास्क. तो हमें इस पे सोचना पड़ेगा कि हाउ डू वी एड्रेस as a hospital provider or service provider, इनके लिए what we should we do कि they perform well and we support them in the days of difficulties, उनका mental health issues भी, और provide them that support the community से जो extra pressure बन रहा होता है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल I totally agree. Who would like to go next? Okay, मैं आपको एक लोकल अपने कल्चर की एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. एक अफसर को जो कि मैं बहुत ही प्रॉमिसिंग, मैच्योर, बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंट अफसर. अब ये कल्चर की आप देखें इफेक्ट कि जब बाप चाहता था कि शादी हो मेरी बहन के साथ, तो माँ चाहती थी कि मेरी उसके साथ हो. वेरी प्रॉमिसिंग यंग बॉय, स्मार्ट. बिल्कुल ठीक है. लेकिन उसके फादर के साथ, फादर की जो भैंस के साथ हो गई. अब माँ ने एक्सेप्ट नहीं किया.
वेरी शॉर्टली आपको बताता हूँ, फादर की डेथ हो गई। अब वो इतने ज्यादा टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट हो गया घर के अंदर कि जी ही हैज टू मेंटेन 2 हाउसेस। एक में 3 डेज वो अपने बच्चे और फैमिली के साथ रहता था, और 3 डेज वो जहाँ पे मदर को रखता। अब यू सी कि जी एक अच्छा, और जो फैमिली का प्रेशर, जो बहनें ये वो माँ की तरफ प्रेशर डालती थी, और हम्म। दूसरे जो अब वो फाइनेंशियली भी वो बेचारा नीचे चला गया, और फैमिली वाइज भी लोग भी कहते हैं यार तुम माँ को नहीं रखते, तुम ये है जिस तरह वो आपने एक कहा कि moral एक struggle में भी रोल जो चला। होता है बहुत। अब वो जो बहुत लंबा हो गया तो वो चला गया डिप्रेशन में, प्लस पूरी साइकोलॉजिकल एलिमेंट उसके अंदर आना शुरू हो गई, और उसकी मिसेज को भी होना शुरू। वंस ही पोस्टेड जो मेरी जगह मेरे पास आया जब, तुझे जब सारी मुझे कहानी का पता लगा, तो अब आप देखें कि वहाँ पे जो वर्क लोड था, उसका जो प्रेशर था, वो भी ऑफिस का प्रेशर भी था कि जी आप वो कर नहीं सक रहा था। वो कभी वहाँ पे बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर शो करता, कभी बर्न आउट, कभी किस तरह उसकी सिम्टम थे। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक लीडर्स को, आपको जो आपका भी बॉस है उसको रियलाइज करनी चाहिए कि ये फैमिली इश्यूज एट टाइम्स वो ऐसे हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहते। बिल्कुल। राइट, तो जब उसको थोड़ा सा स्पेस दिया गया, उसको इन सारी चीजों को एड्रेस किया गया बहुत सारे को, तो स्टार्ट इम्प्रूविंग और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बट वो मेडिकेशन वाला और वो सिलसिला भी उसके साथ चलता रहा, उसके साथ और उसकी मिसेज के साथ। देन उसकी मिसेज जब थोड़ा सा बेहतर हुआ, उसने भी एक जॉब ज्वाइन कर ली, तो थोड़ा सा सेटल्ड, हैप्पी। बट ये है कि तो आप देखिए कल्चर के कितने इफेक्ट्स और कितने हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो माँ का, कि जी माँ का जो दर्जा है तुम वो नहीं कर रहे। बिल्कुल अब वो इतनी ज्यादा थी कि वो 2 घर को मेंटेन कर, अभी बिल्कुल भी वो एक कर रहे कॉन्टिन्यूस, हाँ, एक कॉन्टिन्यूस हैं। मॉरल प्रोफेशनल पर्सनल स्ट्रगल के बीच में। एग्जैक्टली, उसको देख के दुख होता है कि इतना अच्छा, प्रॉमिसिंग और वेरी कॉम्पिटेंट, और वो किस कहाँ पे जाके ना वो खड़ा हो गया बिकॉज ऑफ बिल्कुल, दिस फैमिली और ये स्ट्रेस की वजह। टोटली एग्री। जी फहीम, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन? So, I agree with all the panelists. हमारे पास तो hundreds of examples होती हैं डेली, काफ़ी सारे केसेस आ रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के भी। बट इन दी एंड जो हम जब भी किसी के साथ बैठते हैं और थोड़ा सा उससे डिस्कस करते हैं, तो उसमें यही चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि वो अपने अंदर चीज़ों को रख के बैठे होते हैं। उनके कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है जिन्होंने। जब थोड़ा सा आप उनसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ यार, मैं घर में नहीं बता सकता, तो घर वाले बिल्कुल टेंशन लेंगे, ऑफिस में नहीं बता सकता, कोलीग्स क्या कहेंगे। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, इससे इंसान बहुत अफेक्ट होता है। तो आई थिंक जो भी लाइन मैनेजर है या जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, दे शुड आल्सो थिंक अबाउट इन दिस वे कि कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ मेंटली इश्यूज चल रहे होते हैं। इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी समथिंग एल्स। तो यू यस हैव टू बी वेरी केयरफुल while saying something to anyone. आप उनको बिठाएं, आप उनके साथ डिस्कस करें, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। और आप अपने से बिल्कुल अगर डिसीजन बिल्कुल लिए जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि उसको अगर इवन बेहतर उनसे बजाय चीजें और बुरी हो जाएंगी अगर हम ओपनली बैठ के डिस्कशन ना करें तो आई थिंक आई बिल्कुल वुड आई रेकमेंड कि टोटली जितने भी लोग हैं यस। कॉर्पोरेट के अंदर, जिनके पास एक अच्छी पोस्ट है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर लीडरशिप पहुंचे रोल है लोग जिनके होते हैं, पास। यस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी को देखते हैं स्ट्रेस में या किसी की कोई इश्यू चल रहा है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन विद हिम, उनके साथ बैठें, बात करें एंड उस चीज को आसान करें उसके लिए। Bilkul, I totally agree. Now that you are addressing the floor, Fahim, I would like to discuss a few workplace pressures or unka combination with the mental health. Uh, Right. what are the main work-related pressures and stressors जो कि आपको लगता है कि in this current generation भी कह लें या in this current era the workplace has जो कि men are facing? You can address this question and then Ansari Sab can also add on. यूजली मैंने जो देखा है कि सेल्स स्टाफ जितना भी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ज्यादा कुछ स्ट्रेस में होते हैं। उसकी रीजन ये होती है उन्होंने टारगेट्स अपने मीट करने होते हैं, और जब टारगेट मीट नहीं हो रहे होते हैं तो उनके पास एक प्रेशर होता है कि जॉब ना चली जाए, हम कि वो कैसे मैनेज करेंगे। तो वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लस कुछ अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दे दी जाती हैं ऑफिस बिल्कुल के अंदर, जिसकी वजह से वो बैक टू बैक अपने टास्क में लगे होते हैं। उससे क्या होता है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। आप ऑफिस में लेट आवर स्पेंड कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग हियर लाइक 8-9 o'clock तक आप ऑफिस में बैठे हैं, उसके बाद आप घर जाते हैं, तो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू स्पीक टू एनीवन।
ना आप फ्रेंड से मिल सक रहे हैं, ना फैमिली से मिल सक रहे हैं। सो तो एक कांस्टेंट आपके अंदर ना वो एक बिल्डअप होता रहता है, एक प्रेशर। बिल्कुल, और वो चीजें बॉटल अप होती रहती हैं। यस, बॉटल अप होती रहती है, और वो इसलिए रिलीज नहीं होती कि आप आगे से किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे, और आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड ही कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, आप घर में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे कि जिनके साथ आप बात कर सकें। तो हर किसी को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसका उसका उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो ये एक कॉन्स्टेंट प्रेशर तो है, ये कॉर्पोरेट कल्चर में हर जगह है, मैंने देखा है, और मोस्टली सेल्स स्टाफ के अंदर तो बहुत ही होता है। बिल्कुल नहीं, आई टोटली एग्री। जी अंसारी साहब, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वर्क रिलेटेड प्रेशर्स। मेरे ख्याल में व्हाट वी डू, हम ग्लोरीफाई करते हैं बैड प्रैक्टिसेस को, जो जनरली ट्रिगर्स होते हैं मेंटल हेल्थ के। सो व्हाट हैपन, हमें टॉप परफॉर्मर बनना होता है, वी एडॉप्ट दोज बैड प्रैक्टिसेस जो स्ट्रेस या बर्नआउट के ट्रिगर्स होते हैं, वो हमारे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाता है। वी रन इन दैट रेस कि हमने टॉप परफॉर्मर रहना है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में ये पॉलिसीज और ये सारी चीजें जब तक चेंज नहीं होंगी, जब तक लीडर ये नहीं समझेगी कि प्रोडक्टिव इज पर्सन who is taking care of the mental health. तो mental health stable आदमी होगा, he will be more productive. So ये policy making has to come in, और ये हमें जो रेस लगी होती है ना कि extra mile glorifying that thing is a trigger. So basic problem lies in policy making and from the बिल्कुल। leadership. No, I totally agree. Dr. Abe, this question would be addressed towards you. कि अभी जैसे हमने पहले बात की कि हम ओवरवर्किंग के बारे में, वी विल कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट ओवरवर्किंग। तो बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि मेन ट्राई टू कोप अप विद थिंग्स एंड ट्राई टू कोप अप विद स्ट्रेस थ्रू ओवरवर्किंग, विड्रॉल, या तो फिर इरिटेबिलिटी, rather than having open conversations or opening up to anyone. So why do you think that happens? देखिए, एक तो ये बेसिकली कंपनसेटरी बिहेवियर्स हैं। जो इरिटेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने ऑलरेडी काफी सारे डिस्कस किए हुए हैं। ये दीज आर द मैनिफेस्टेशन। उस मैनिफेस्टेशन को, फॉर एग्जांपल विथड्रॉल है, ये इस कम्स आउट ऑफ द सेल्फ रिलायंट रोल से कि जी आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई शुड डू एवरीथिंग। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपने प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व कर सकता हूँ। वो क्या होता है कि जब वो नहीं कर पाता तो वो विथड्रॉल की तरफ वो चला जाता है। इसी तरह जो आपने बात की इरिटेबिलिटी वगैरह की, ये वो जो रोल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रोल की वो बात की जाती है कि जी स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट। अच्छा, जब वो उसको वो नहीं कर पाता तो बेसिकली आउट ऑफ दैट फिर वो इरिटेबिलिटी, एंगर, और सोसाइटी में उसकी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी है कि थोड़ा बहुत अगर मर्द ऐसी हरकत कर दे या गुस्सा शो कर दे या कहीं भी, तो उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दे, मतलब ओके जी सुनो, विच इज इरिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग रोल जो के। और जो ओवर वर्किंग है, ये जैसे अभी पहले भी बात हुई, ये प्रोवाइडर रोल के ऊपर सम पीपल जो है ना ओवर वर्किंग एज अ कंपनसेटरी बिहेवियर करते हैं ताकि वो उसको एस्केप करें, अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन को। एंड एट टाइम्स दे हैव टू डू ओवर वर्क एज वेल कि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को करें। इन एनी केस उनकी ना वो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है इन तीनों चीजों से, विड्रॉल से, बिल्कुल इरिटेबिलिटी से भी, एंड ये आपकी जो बिल्कुल। ओवर वर्किंग है। तो ये इट हैज टू बी अ बैलेंस। जैसे बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की इन्होंने, जो क्या कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बगैर ये चीजें जो है ना वो, और अर्ली सिम्टम जो है उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें बाय द मैनेजर्स या जो भी उनको केयर गिवर्स हैं, तो दिस कैन बी हैंडल्ड। नहीं, बिल्कुल, I totally agree with you, Dr. साहब. Now my next question would be for Fahim and Ansari साहब, क्योंकि वर्क कल्चर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि जो वर्क प्लेस कल्चर या कंपनी के जो स्ट्रक्चर्स या रूल्स होते हैं, वो अभी जैसे हमने पहले भी बात की कि वो जो रूल्स बने हुए हैं इन द कॉर्पोरेट्स और इन द कंपनीज, वो अफेक्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को। तो आपका क्या ख्याल है कि लाइक how they are kind of those cultures or those rules या structures are affecting the mental health? आई थिंक हर कंपनी का एक डिफरेंट कल्चर होता है, और इवन एक कंपनी के अंदर भी मल्टीपल कल्चर्स रन हो रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट का भी अपना कल्चर होता है। आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके लाइन मैनेजर
किस तरह का है, आपका बॉस किस तरह का है, आपका हेड किस तरह का है, तो उसके हिसाब से ही आपकी लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं। माइट भी हो सकता है एक बंदा एक डिपार्टमेंट में काम कर उसके लिए बहुत अच्छा कल्चर हो, उसको बहुत सपोर्टिव टीम मिली हो, सपोर्टिव बॉस मिला हो, बट सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में एक और बंदा होगा, माइट भी उसका जो बॉस है वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, या ऐसे लोग हो सकते हैं उसके सराउंडिंग में जो उसकी बात ना सुनते हैं और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करें। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, और कंपनी पे देखा जा सकता है कि हर कंपनी के अंदर भी डिफरेंट कल्चर रन हो रहे होते हैं। उसमें होता है कि सही। इफ यू हैव गुड पॉलिसीज, अगर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा लीडरशिप का कंट्रोल है, और लोग देख रहे हैं कि क्या चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या कल्चर चल रहा है। इट कैन बी थ्रू मल्टीपल थिंग्स, आप सर्वे करा सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो अगर तो ये कंट्रोल्स हैं, अगर ये चेक हैं, आप 360 इवैल्यूएशन करवाते हैं, आप पल्स चेक करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होती है। बट यूजली पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। और प्लस वी डू नॉट हैव सर्टेन सर्विसेज, ईएपी की कोई सर्विस नहीं है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम बिल्कुल। का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर तो बहुत ज्यादा है ये, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम कंपनीज है जो इस पे काम कर रही हैं। सो इफ वी हैव सच पॉलिसीज, सच बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज, आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम हो सकती, बट अभी पाकिस्तान में बहुत रेयर है ये सब। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। बिल्कुल बिल्कुल सी बात हुई। एंड यू नो जो कल्चर होता है टॉप टू बॉटम पेनिट्रेट कर रहा होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यू नो as being a leader of in any organization, I should be role model. अगर मैं डिस्कस नहीं कर सकता अपने स्ट्रेस लेवल का, मेंटल हेल्थ इश्यूज का, तो आई एम सेटिंग एग्जाम्पल के स्ट्रेस डिस्कस नहीं करना चाहिए। सो आई विल शो दैट यू नो लाइक अ फादरली फिगर कि मुझे ये शो नहीं करना कि मैं स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यू में फेस कर रहा हूँ। सो आई शुड बी ओपन फॉर इट कि मुझे भी स्ट्रेस होता है, मैं भी इसी तरह से तंग होता हूँ जैसे आम एम्प्लॉय हो रहा होता है। So that will open the door, people they will talk. और I think so that जो सबसे ज्यादा काम होना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में, training all your managers how to manage your stress and your team's stress, ठीक है। So एम्प्लॉय जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं वो HR ड्रिवन होते हैं। आई थिंक सो मैनेजर शुड बी रिस्पांसिबल अकाउंटेबल कि इस लेवल पे अपनी टीम को मैनेज करे, एंड ही शुड इनकरेज पीपल। जब स्ट्रेस आ जाए तो कहीं तो वो बात कर सके। बात करने से, और बात करने की एक पॉइंट है, देन ही शुड हैव सम सॉल्यूशन कि किस तरह से आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। आई शुड बी ओपन एज वेल, मैं उनसे बात करूँ, मुझे भी स्ट्रेस होता है, मैं भी अपने स्ट्रेस को इस तरह से मैनेज कर रहा होता हूँ। So this is how normally things get better in the organization, और leadership का role define होना चाहिए, और उसी से कल्चर बनता है। नहीं, बिल्कुल सर, सो आई टोटली अग्री विद दिस। अभी चले, हमने वो तो कल्चर की भी बात कर ली, कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। बट डॉक्टर Shoaib, I would like to ask you because you obviously have a direct connection to anyone who will come for help regarding mental health or anything. So how can men differentiate between being stressed versus being burned out? And what early self checks would you recommend कि these are the things कि जो एक early signs है आप इधर से catch कर सकते हो कि either you're stressed or you're completely burned out? बेसिक तो ये ऑफशूट तो सारी स्ट्रेस की है, बट बिल्कुल। स्ट्रेस को थोड़ा सा वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड बर्नआउट। स्ट्रेस को हम थोड़ा सा ये कहने कि समबडी इज ओवर एंगेज्ड, या एक जो ओवरवेल्म चीज होता है तो उसको हम स्ट्रेस में कहते हैं। बट जब बर्नआउट स्टेज पे जाता है तो इस सॉर्ट ऑफ बिल्कुल डिटैच हो जाता है, कोई डिप्लीट कह लें आप, ठीक है, थोड़ा सा उसकी सीवियर फॉर्म है। इसमें लाइक एंजाइटी होगी, स्ट्रेस हाई एनर्जी भी देता है और आपको अर्जेंसी भी प्रोवाइड करता है। बट वंस इन स्टेट ऑफ बर्न आउट तो वो बिल्कुल वो लो एनर्जी चली जाती है, वो अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करते हैं, होपलेसनेस फील करते हैं, एंड उसके अंदर इतनी रेजिलियंस बाकी नहीं रहती कि शुड कम आउट, और बिल्कुल। बिल्कुल इमोशनल फ्लैटनेस में चले जाते हैं। अच्छा, इसकी जो
जैसे पहले भी बात हुई, बहुत सारे ज़ाहिर है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कैटर फॉर कर रही होती है, बट जो अर्ली चेक है, फॉर एग्जांपल कि जी आप उससे पूछते हैं कि कितना अपनी लाइफ को कितना बैलेंस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, डज ही फील हैप्पी, कहीं उसके ये तो नहीं पता लगे जी कि पिछले 2 महीने से उसने कोई ना किसी के साथ कोई जोक क्रैक किया, ना हंसा, ना कुछ किया, ठीक है। फिर बिल्कुल लोगों से आपकी इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कैसी है, कहीं विदड्रॉ तो नहीं हो रहा, आइसोलेटेड तो नहीं हो रहा। देन देयर उसकी जो जो वैल्यूज होती हैं उसको वो कैसे करते हैं, स्लीप की सर्कल कैसे हैं, आपने जो लोगों के साथ की बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, काम के ऊपर फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं, बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये और whereas he has the potential to do the thing, but yeah, he is doing these are repeated sort of a thing. So these are the early signs where one should find out कि जी अभी now is in a state of stress or burnout, उसको थोड़ी सी break required है, and of course उसके अंदर उसको काउंसलिंग या मे बी जो भी इंटरवेंशन की जा सकती है that can be done. नहीं, yes, totally, I agree with that. Now I would like Ansari Saab and Fahim to address this one for me, as you guys are already in leadership roles. और अगर मैं बात करूं कि अगर हम specifically leadership positions की बात करें, तो do men in leadership positions experience additional stress to appear unshakable, and how does that kind of impact the team culture जिस team को वो lead कर रहे हैं? आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही है। कांस्टेंट प्रेशर होता है एक लीडरशिप रोल के ऊपर, बिकॉज आपके उसी हिसाब से चीज़ें आपने डील करनी होती है, स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक जो होता है कि आपने हर वक्त अवेलेबल रहना है, एक ये भी जो है ना कॉन्सेप्ट जो है, इससे भी बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है। बिल्कुल यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम। ये गलत कल्चर है, ये हमने खुद सेट किया हुआ है। बट अगर आप अपने आप को खुद मैनेज करते हैं प्रॉपरली, यू हैव योर टाइम टेबल, अगर आप अपने आप को चीज़ों को प्रॉपर लेके चल रहे हैं, यू हैव सेट योर प्रायोरिटीज कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, आपने इस टाइम पे काम करना है, इस टाइम पे आपने घर जाना है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, वर्कआउट आपने करना है। तो आई डोंट थिंक सो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती। बट जिन्होंने अपनी रूटीन सेट नहीं की होती, लाइफ को बैलेंस नहीं रखा होता, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा ये इश्यूज आते हैं। अच्छा जी, fortunately or unfortunately, I work in healthcare, which is 24/7, and it's a very complex system on people-driven. So, playing a leader's role is like a 24/7 job. बिल्कुल और जो recently norms बने हैं, मैं I used to work in NHS, 5 बजे के बाद मुझे पता नहीं होता था हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, and BlackBerry के दौर से आज तक I work 24/7. So when I leave even facility, I have emails to answer. I have to check dashboard, and so it's going on. So my weekends are ruined. My the family life is almost ruined because I'm sitting on the phone 24/7. email का जवाब भी देना है, because team से काम भी लेना है, all this stuff. So we are going towards that line, which will create more stress and fatigue level, and that needs to be addressed. मेरे ख्याल में I will repeat myself कि ये culture will change with having a proper training. We need to understand mental health कितना cost करता है organization को, कितना human being की if I calculate people, they get sick and mentally the health issues होते हैं, they become non-productive. तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन rather than being affected. इसको एड्रेस करने के लिए we need to have some sort of policies and plans within organization. Every manager should be equipped with that skill कि मुझे टीम को किस तरह से मेंटल हेल्थ को मैनेज करना होगा. जी बिल्कुल अंसारी साहब, that's correct. We do need policies, we do need a lot of strategies कि जिससे हम इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकें, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की तरफ लेके जा सकें. That being said, अगर बात करें, जैसे अभी हमने बात की, to build that support system, to build such policies, to build such structures के जो help out करें. तो Ansari Sahab, as you were addressing, so my question would be directed towards you first and then towards Fahim. कि
how can mental health be integrated into the workplace programs या policies, और organizations कैसे integrate कर सकती हैं, specifically talking about Pakistan, कि culturally sensitive approaches जो हों towards mental health support उनको somehow resonate किया जाए with men in Pakistan. जो mental health है ना, that's the main cause is not being aware to mental health है क्या. Even we talk to these very senior leadership, they have no clue what is mental health. ठीक है. So I think so the comprehensive program होना चाहिए. One of the KPI of every manager, like we do succession planning KPI, we should have some sort of a plan. They should be trained on how to manage mental health of the employees. So मेरे ख्याल में उससे बेहतरी आ सकती है. So I'm forgetting your actual question. Actual था क्या? What kind of things can be integrated into workplaces, चाहे वो programs हो या policies हो, and specifically culturally sensitive towards Pakistan? It's training and awareness. More you're aware, more you can handle those mental health issues. So मेरे ख्याल में top to bottom एक training हम इस soft skill दे रहे होते हैं या hard skill दे रहे होते हैं. Every manager they should know how to manage mental health. ये आ जाए तो it will play a huge role. It will create a big impact as well. सही. Fahim, you would like to add on something? Right. So basically, mental health जो है consistent चीज है. ये one time activity नहीं है कि आपने एक दफा की है और बस वो सब कुछ ठीक हो जाएगा. थोड़ा सा मैं example देता हूँ regarding Moblink Bank. So we have a very open culture. We don't have separate offices. Even for executive CEO, everyone sits on the same floor. So उससे होता है कि थोड़ी open communication होती है, तो it get easier for employees to discuss. और जरा culture जरा different तरीके का होता है. Plus last year हमने अपने बैंक के अंदर यहाँ पे employee assistance program launch किया था, which has 4 components. It was mental well-being, physical well-being, financial well-being and workplace well-being. तो उसमें हमने different फिर initiative लिए. रिगार्डिंग नदीम साहब के साथ हमने मिलके सेहत आपके साथ हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है विद द नेम ऑफ मोबी केयर, जिसमें हमने एक फैसिलिटी दी है सारे एम्प्लॉयज को कि आप जाएं पोर्टल के ऊपर, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करें और 1-on-1 30 मिनट्स का आप सेशन ले सकते हैं. सो वी हैव अराउंड 2500 एम्प्लॉयज ऑल ओवर पाकिस्तान. तो अब इन पर्सन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अवेलेबल करना इन सारी 100 लोकेशंस पे पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हमारे बहुत सारे छोटे एरियाज में भी ऑफिस हैं, सिंध के इंटीरियर के अंदर, पंजाब के अंदर. सो फॉर देम इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी. ये कि दे कैन इजीली बुक एन अपॉइंटमेंट और कभी भी उनको फील होता है तो जाके डिस्कस सकते हैं. बिकॉज ये ऐसी चीजें होती हैं कि ओपनली जितने भी अवेयरनेस सेशन कर लेना लोग नहीं कंफर्टेबल होते. दे नीड अ प्राइवेट स्पेस, दे नीड अ समवन जो उनके साथ बैठे बात करे, थोड़ा डिस्कस करे, और समवन जो थोड़ा एक्सपर्ट भी हो. आप किसी आम बंदे से बात करेंगे तो माइट भी वो आपको ऐसा अच्छा सोल्यूशन ना दे, हो गया ठीक है आप ये कर लें, रूटीन चेंज कर लें. बट आप जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठते हैं तो वो आपको अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपनी चीज़ों के साथ जरा डिटेल में जाके आपके मसले का हल निकालते. तो आई थिंक इस तरह की अगर फैसिलिटीज सारी ऑर्गेनाइजेशंस दें और उसको जरा हम कॉमन कर दें और अगर ईजी कर दें सबके लिए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है. बिल्कुल, I totally agree with that. And it's not just कि आप बात करेंगे, मतलब यूजुअली जवाब आगे से आता है ना, वी टॉक टू आवर कोलीग्स, अपने सर्कल में भी तो हम बात करते हैं, बट बात एक सिस्टमैटिक तरीके से करना और चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली एड्रेस करना, these are two different things. So yes, I totally agree with that. That being said, my last question would be towards Dr. Shoaib. एंड इन लोगों ने तो चले बता दिया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव कि क्या चीज़ें इंटीग्रेट हो सकती हैं और किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, बट फ्रॉम योर एंड, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, आई वुड लाइक टू नो कि क्या ऐसी कोलैबोरेटिव अप्रोचेस हो सकती हैं दैट कैन ब्रिज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टू प्रमोट अर्ली और टाइमली इंटरवेंशंस, जैसे अभी फ़हीम ने बताया भी अबाउट द इनिशिएटिव्स दैट मोबलिंक हैज़ टेकन. सो इन दैट रिगार्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड डॉक्टर? थैंक यू नवाल. देखिए, हम हमारे पब्लिक सेक्टर में हम तो सबसे पहले जो नीड असेसमेंट, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है एक किसी पर्सन, एंड दैट बिकम्स अ रिकॉर्ड. उसकी वो एक किस्म की हमारे पास उसकी सारी एक प्रोफाइल बन जाती है, एंड ड्यूरिंग अदर जितने बाकी आगे ट्रेनिंग कोर्सेज चलते रहते हैं तो उसकी एक प्रोफाइल बनती रहती है, और जो कि हम हमारे पास एक बड़ा एक रेडी रेफरेंस मौजूद. फिर then there is so many intervention plans हैं
वर्कशॉप है जो पर्सन स्पेसिफिक भी हैं और जनरल भी, जैसे अभी बात भी की फ़हीम साहब ने भी, बहुत सारी वर्कशॉप्स हम करवाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा हम लेके आए कि जी आप इसकी अपने आप हाउ टू ग्रो योर सेल्फ, हाउ टू फोस्टर योर दीज पोटेंशियल्स, राइट। और मेंटल हेल्थ के बारे से थोड़ा सा हमें हेल्दी मैस्कुलिनिटी के ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम करें। देन वो डेटा ड्रिवन भी है, अगर आप एआई का यूज करें, उसकी पूरी की पूरी जो सिस्टम जो हमारे जो कंप्यूटराइज हो गए हैं बहुत सारे हद तक, वो भी हमें बहुत सारी इंडिकेशन बता देते हैं। एंड लेटर ऑन जो है ना हमने जो ज्यादा प्रॉब्लम देखा, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात हुई, हमारे पब्लिक सेक्टर में लीव का बड़ा एडुकेट लीव रिक्वायर्ड होती है, उसको बिल्कुल। एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। वर्क टाइमिंग जो है ना, अभी देखें जैसे मैं फोर्सेस की बात करता हूँ, सुबह से रात रात तक बजे तक 11-11 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग गए हैं, रात तक वो बैठे हुए हैं। तो दिस आर द जो है ना ये अच्छा, फिर उसके जो ऊपर जो बॉसेस है उनकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि जी वो किसी को टाइमली जो है ना उसको उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, और एट द सेम टाइम ये ऐसी पॉलिसी भी ना नीचे जाए कि लोग उसको ना वो मिसयूज भी करना शुरू कर दें बिल्कुल। हमारे पब्लिक सेक्टर में, कि जी वो डॉजर्स भी बीच में शामिल हो जाते हैं, जी ठीक है जी इधर से हमें रिलीफ मिल रहा है फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, तो लेट्स हम भी इंजॉय करें इस किस्म की। देखिए ये टेली बिल्कुल। काउंसलिंग है जैसे आपने बताया, तो ये भी फंक्शन है। तो पब्लिक सेक्टर में ये इश्यूज ज्यादा इस तरह से, फाइनेंशियल भी काफी इफेक्ट है, ये बैलेंस, अगर इन चीजों को टाइमिंग्स को सही करें, वर्क लाइफ बैलेंस करें, आइडेंटिफाई करें, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। आप लोग जो बहुत एक जो लाइबिलिटी बन जाती है सर्विस के लिए, वो फिर लाइबिलिटी रहते बल्कि दे बिकम अ गुड एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नॉलेज वर्कर के तौर पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। And thank you so much to all three of you for such insightful discussion. Now I would like to take questions from the audience. मेरे पास already chat box में 2 questions हैं, and all three of you can answer them briefly. I'll start with the very first question, that is, what can men realistically do in a system that pushes them to overwork and discourages them from speaking about their mental health? Is there any practical way forward for them to protect their well-being without putting their stability at risk? Dr. I think you should address that जी first. बिल्कुल, जिस तरह देखिए बहुत सारी हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेवल पे भी है, देयर शुड बी साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी एक उसका हिस्सा होनी चाहिए। जैसे फ़हीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उनके लिंक्ड है विद सेहतियात के साथ, राइट। तो ये भी अपॉर्चुनिटी हमारे जो सेक्टर में, खासतौर पब्लिक सेक्टर में लोगों को होनी चाहिए, जहाँ पे भी वो फील करें एट देयर ओन टाइम, नॉट कंप्रोमाइजिंग द जो गवर्नमेंट का जो टाइम है उसको कंप्रोमाइज करके अपने लेटर टाइम के अंदर वो अपनी इनको, और जैसे ये सेफ्टी पॉलिसी उनकी, असेसमेंट्स उनकी, ये सारी चीजें उसके अंदर अगर एक पॉलिसी के तौर पे आ जाएगी तो वो इट विल बी बिकम अ sort of a norm, or everybody will be able to get these sort of services without being stigmatized. वो स्टिग्मा या वो उसके बगैर हर बंदा अपनी इमोशनल वेल बीइंग के लिए वो करना चाहेगा, एंड अर्ली डिटेक्शन भी इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकेगी। आई थिंक दिस इज एक इसमें बस मैं एक होना चीज ऐड चाहिए। करना चाहूंगा। जी जी। हमेशा ना अक्सर ये होता है कि हम सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं और हम बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से हमारी मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हो रही है। बट काफी जगह पे हमारा अपना भी एक उसमें रोल होता है, हमारी अपनी भी गलती होती है कि हम काफी जगह पे हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं, हमारी चीजें एक ऑर्डर में नहीं चल रही होती। हम अपने ऊपर काम को लेके स्ट्रेस को लेके रख के बैठे होते हैं बिकॉज हम वो काम टाइमली नहीं कर रहे होते। हम उसको पाइल अप कर देते हैं बिल्कुल, और फिर उसका स्ट्रेस लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस अगर हम थोड़ा सा, प्रोक्रेस्टिनेशन चल जी, रही होती है। थोड़ा सा अगर हम उसको भी जरा मैनेज कर लें अपनी टाइमिंग को, अपनी एक रूटीन को, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्लस वी नीड टू शो आवरसेल्फ कि आपकी अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आप पहले इंपॉर्टेंट हो, उसके बाद बाकी सारी चीजें। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल वेलबींग एज वेल। अगर आपने अपनी मेंटल वेलबींग अच्छी करनी है तो यू हैव टू वर्क ऑन द फिजिकल वेलबींग एज वेल। आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने अच्छी डाइट भी लेनी है, तो इन सब चीजों का बहुत इम्पैक्ट होता है।
तो कुछ जगहों पे हमारी अपनी भी गलती होती है, आई थिंक, जो इजीली फिक्स हो सकती है, एंड काफी सारे मसले आपके वहीं हल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंसारी साहब, you would like to add something? I think so. Corporate sector, they need to work on trigger points. बिल्कुल। We are just discussing the end resolution is a psychologist, a psychiatrist. उससे पहले बहुत सारी स्टेज है जहाँ पे हम इन चीज को रोक सकते हैं. So that should be the part of the organization culture. Triggers क्या हैं? We should have a survey, yearly basis. फिर उस पर काम होना चाहिए कि how we can reduce these triggers. उसमें everybody has to play a role from the top to bottom. ये triggers खत्म हो जाएंगे, mental wellness बेहतर होती जाएगी. Bilkul, I totally agree with all of you. Okay, then it's not a question, but it's more like a comment from Roxana Khan. Initially, men should become aware that they are struggling in regulating their thoughts and emotions because of this overwork, and then find a safe space to address or write them down. Most importantly, be honest, true to themselves, and not to gaslight. Any comments from any of you regarding that? Exactly, she's right, बिल्कुल. और एक healthy environment के लिए one has to be एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, और प्लस उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेस को, और उसको टैकल करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक रेजिलियंस, एक बड़ा सिस्टम रखा हुआ है जो सारे मामलात को ऑटोमेटिकली एड्रेस कर रहा होता है. तो उसको यूटिलाइज करें. जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो फिर नेचुरली go for the counseling, go for the help, or as early as possible, so that कि जी उसी को address किया जाए. And we have another comment from Haris Kamran. I think the most important strategy would be to train the managers and incorporate mental health awareness in organization policy. Yes, we totally agree with you as well. And then we have Kizan, I guess. उनका सवाल है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सर्टेन पॉइंट है, हमें अब किसी से डिस्कस करना चाहिए. शोएब साहब. जी बिल्कुल, वो जो हमने अर्ली चेक्स और जो आपको सिम्टम्स बताए थे इरिटेबिलिटी के, वो इंसान खुद भी देख सकता है, और प्लस अपने सिग्निफिकेंट अदर से भी पूछ सकते हैं, अपने बॉसेस से, कोलीग से भी पूछ सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि इरिटेबिलिटी है, बार बार गुस्सा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, स्लीपिंग उसके साइकिल ठीक नहीं आ रहे, खाने का प्रॉब्लम है, राइट. और फिर जो है ना, सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी जो है, मोटिवेटेड जो एक सोल रहती है वो नहीं हो रही, ठीक है, हाई एनर्जी नहीं है, ठीक है, अचीवमेंट के लिए टू बिकम जो है ना, वो आगे बढ़ने के लिए वो उसके अंदर अर्ज नहीं है. तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि विच शोज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट. उसको इंटेस्ट करने की इमीडिएट जरूरत है. बैलेंस की बात हुई. दो चीजें वेरी कॉमन. जब रात को आधी नींद से उठ के आप काम के बारे में सोचना शुरू करें, बिल्कुल, और जब सुबह उठे आपका दिल ना करे काम पे जाने के लिए, ये सवाल पूछा करें. अगर ये हो रहा है तो दे आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज. प्लस आई थिंक कुछ और भी रीजंस हैं जिन पे हमें काम की जरूरत है. अक्सर हम डिस्कशन में बैठे होते हैं किसी के साथ और हम लॉस्ट होते हैं अपने फोन के अंदर, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिजिटली डिपेंडेंट हो गए हैं, हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है. इतनी ज्यादा हमें हैबिट हो गई है कि हमने वो स्क्रॉल करते रहना है, हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करते रहना है अपने अंदर. उससे क्या होता है कि हम जो एक एनवायरनमेंट होता है जहां हम बैठे होते हैं हम उसको मिस कर जाते हैं. अगर हम किसी के साथ बैठे हैं डिस्कशन के अंदर, तो अगर हम उसको एंजॉय करेंगे, फोन को साइड पे रखेंगे, तो उससे भी मेरे ख्याल से काफी इम्प्रूवमेंट आएगी. और ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है मेरे ख्याल से जो जो काफी सारे लोगों के अंदर है. नहीं बिल्कुल. एंड समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट द कल्चर. I just want to add on one trigger जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है. You know, the emails after 5 p.m. asking them to reply back within 1 hour to your employees. Asking them to finish, the task before you come next day. ये मेरे ख्याल छोटी-छोटी practices हैं. We are pushing them to go on that line. टेक्नोलॉजी से mental health issues ज़्यादा बढ़े हैं, तो इसको एड्रेस करना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को. व्हाट इज द इंटेंसिटी के जिसको हमने यहाँ पे मेजर करना है. काम आफ्टर 5,
नहीं, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट। कुछ चीज़ों पर, कुछ जगहों पर हमें बाउंड्री सेटिंग और उन सारी चीज़ों पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। There's another question in the chat box. Guys, feel free to drop your questions in the chat box. हम अगले 5-7 मिनट में we'll be winding up. There's another question that is, how can corporate and organizational leadership effectively destigmatize mental health challenges within the workplace, specifically focusing on creating confidential and accessible support structures that encourage male employees to seek help without fear of professional repercussions or compromising perceived strength and competence? Ansari Saab or Fahim, I would suggest you guys address this. इसमें हम अपनी एग्जांपल ही देंगे। जब हम अपने मेंटल वेलबींग की सर्विसेज स्टार्ट करी तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये था कि हम इन हाउस क्लिनिक ही ओपन कर लें, बट कुछ हमारे और लोग थे जिनसे हमने डिस्कस किया, जैसे यूएन है, वहाँ पे भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है, हमारे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। बट वहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये था कि जब भी आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो आपके सराउंडिंग के लोग होते हैं, तो आपको जज करना शुरू कर देते हैं Agree. कि इसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसका कोई मसला चल रहा है। सो देन वी कम अप विद द मॉडल कि हम इसको ऑनलाइन रखते हैं, तो इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर आपने करनी। बट ये कि हमने थोड़ा सा कल्चर क्रिएट करना है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, इट्स समथिंग कि जो नॉर्मल है। तो वो हमें टाइम के साथ साथ एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इट कैन बी थ्रू वर्कशॉप, इट कैन बी थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, वो कांस्टेंट आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके ये टैबू जो है ये खत्म होगा। I think so. I totally agree. इसका रिलेवेंस ये दूंगा कि NHS में मेंटल हेल्थ केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, अराउंड 37 to 40% जब से टेलीमेडिसिन एडॉप्शन आई है। द रीजन बीइंग पेशेंट फील कंफर्टेबल सिटिंग इन देयर होम, और उसकी प्राइवेसी भी बेहतर रहती है, तो इससे ज्यादा रिपोर्ट भी होते हैं, उसको बेहतर तरीके से डॉक्टर एड्रेस भी कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन when it comes to the mental health. बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट। और वो जो एक स्टीरियोटाइप को हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं। So there's another one by Saleha, that being a woman we must had to listen females can understand men, why it shouldn't be logical for men that every person has some stressors. Male are highly attacked by stressors due to their maximum interaction with society, and they process so many things. So why they shouldn't understand small communication can heal their issues rather than to show themselves as a strong person. Shoaib Saab, I think you would better be able to address जी this. बिल्कुल, एग्जैक्टली जो हमने पहले भी बात की, जो मैस्कुलिनिटी का जो एक मिसकंसेप्शन है, वो टॉक्सिक किस्म की वो है, और जबकि हेल्दी और पॉजिटिव जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो विच इज इन रिलेशन टू आवर कल्चर एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, फिर जो बिल्कुल ये आई एग्री, इमोशनल सप्रेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। हम अपने जो भी इरिटेंट्स है उनको ये करते हैं, बट नेचुरली अगर ये एड्रेस नहीं होंगे तो सोसाइटी में प्रॉब्लम तो रहेंगे, और तो एक बड़ा रोल है दैट है मेल का हमारी एथलीट इस कल्चर के अंदर। सो दूसरा है कि जी मेल या फीमेल या किसी से भी हो, एट टाइम्स जो है ना हमारे कल्चर में फीमेल की रिस्पेक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे लोग एट टाइम्स जो है ना उनको उनके साथ बड़ी ही रिस्पेक्टफुली डील करते हैं, और उनकी बात को समझने की भी कोशिश करते हैं एक सिस्टम के अंदर जनरली। और मेल टू मेल जो हमारी काउंसलिंग है वो बाद दफ़ा अच्छी भी होती है और बाद दफ़ा इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती। तो सो डिपेंड करता है, बट ये है कि हमें एक ट्रू पर्सपेक्टिव में एक ऐसी सोसाइटी जो बड़ी ऑब्जेक्टिव हो, ऐसी सोसाइटी जो ट्रू चीज़ों को सही मानों में देख सके और सही को सही गलत को गलत कह सके। हम बहुत ज़्यादा ना वो फेक लोग बनते जा रहे हैं, इन द सेंस कि जी हम जिससे भी पूछें, स्पेशली मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूँ, जैसे अभी एफपीएससी में भी थोड़ा सा मेरा काम है और आर्मी के अंदर भी, तो लोग अपना ट्रू सेल्फ नहीं डिपिक्ट करते, जो उनसे बात करें उसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं।
whereas वो चीजों को Western suppress culture करने में चीजें जी बढ़ती बिल्कुल ऐसे ही वो अपने आप को ना वो फेक बिल्कुल बिहेवियर रुखसाना खान का एक comment है that as an adult we all have this deep sense of awareness and understanding. However, since we are not self-connected and keep distracting, looking for excuses and gaslighting, which is why we believe we are not aware, brain fog and struggling to make decisions on even small tasks can also be taken as clues. We totally agree with that. The panel also agrees with this. Then there's another one from Kamran Rao. I think when one person's mismanagement at work causes problems, it creates a stressful emergency for others who are hardworking. This situation can seriously disrupt mental well-being. If panel wants to say something about this. एक चीज में सॉरी जी फहीम कंटिन्यू जी फहीम एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बात होनी भी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है काफ़ी अरसे अभी रिसेंटली और उसमें सबसे बड़ा रोल मेंटल हेल्थ का ही है यही होता है कि आपके अंदर एक चीज़ बिल्डअप हुई होती है और वो आप जाके किसी और के ऊपर वायलेंस के शेप में निकाल रहे होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम बचपन से ही बच्चों को बोलते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई इंस्टेड कि हमें कहना चाहिए बॉयज़ डोंट मेक समवन क्राई तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमें लेके आना पड़ेगा और ये यही है कि जो मेंटल वेलबींग पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो इसका सिर्फ इफेक्ट उस बंदे पे नहीं हो रहा उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उस पर भी इफेक्ट हो रहा है इट कैन बी इन ए शेप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या किसी और शेप के अंदर सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पे बात करें और बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस क्रिएट हुई है और लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया है सो दिस इज समथिंग बिल्कुल इस पे हमें बात करनी चाहिए we agree with that and very I'll add on one thing. जी, I think we should change the slogan. We should cry. Cry is an Yeah. emotion. If you hold it, that's a trigger for the mental health. Crying is like any emotion जिसे हम हंसते हैं जब पेन होता है तो बेबी सबसे पहले क्राई करता है वो Yeah. उसकी दैट्स नेचुरल उसकी यही तरीका होता है कम्युनिकेट करना के ईदर वो बेबी इज हंग्री और गोइंग थ्रू द पेन जी बिल्कुल I totally agree with you Ansari साहब. Any closing remarks from all three of you starting with Dr. Shoaib? Nawal, it was a really productive and very fruitful sort of a discussion. We expressed our point of view and learned so many things from other panelists. And माशाल्लाह बड़े अच्छे questions भी किए गए और ज़ाहिर टाइम शॉर्ट था उसमें आपको विद इन टाइम जवाब भी देना था बट आई रियली एंजॉयड दिस सॉर्ट ऑफ वेबिनार और आई congratulate Sehat Yab and his team, especially you, for conducting it so excellently. I'm really proud of you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू नवाल थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस सेशन थैंक यू टू सेहत यार टीम और जितने भी पैनलिस्ट थे बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही आई थिंक हमें